Hello to all class 9th children and kids. We are doing lesson number 15. Lesson number 15 is infrastructure in Indian economy, the infrastructure of Indian economy, right? And we are in aviation, air transport, civil aviations. So when we talk about air transport, we talk about infrastructure. So air transport, known as aviations. So air transport, when we talk about air transport, what we are talking about? We are talking about the transport, air as a means of transport, how we transport things and people from one place to another with the help of air, that is with the help of airplane, helicopter, or any other such things. So whatever, whenever we travel from air, this is known as air transport or aviations, and it is the fastest mode of transport and most suitable for the long distances. So air transport is the fastest means of transport because it hardly takes any time to travel from one place to another, right? And the fastest is, and it is very suitable for long distances, like in case you want to go to abroad, USA, France. So here you can travel from air transport. And for those who routes which have uneven and difficult terrain, so routes where it's very difficult to travel, like you have, in case you have water in between seas, or you have mountain areas, right? So or sandy areas, deserts. So in these areas it's very difficult to travel, so these areas can be crossed with the help of air transports. So it provides us a valuable relief service in case of natural calamities. So whenever natural calamities happens, what are natural calamities? Natural calamities मतलब जो नेचर कभी कभी आपदा, जो नेचुरल आपदा आती है, डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या फ्लड आया या तूफान आया, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त बहुत ही तबाही मचती है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है, बहुत घरों को नुकसान पहुंचता है। अगर सुनामी आए तो बहुत जगह पानी भर जाता है, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो what helps us, the things which helps us is the aviations only. It is the air transport which helps us in supplying goods, medicines, and many times the air transport, with the help of helicopter, they carry the people, those who are injured, they can be carried with the help of helicopters and taken to the hospital. So during the times of natural calamities also, air transports help us a lot. Now, during emergencies, civil aviation facilities can be utilized for supporting defense forces. Now, you must be see these days that there is tension going on between India and China. So, but how India is looking after its territory? India is looking after its territory with the help of helicopters, fighters, jets, right? So these all things are choppers. So these all things are looking after these all things are looking after the areas of India, and they are looking after the security of India. They are looking after the trespassing of Chinese. So these all things gives us aerial view, and it becomes very easy for the defense also to look after its area. The patrolling is done with the help of these things. So kids, further, not only traveling is can be done with the help of air transport, but other things can also be done, right? So they said that at the time of independence, India virtually had no civil aviations. In 1946, the government set up the Air Transport Licensing Board, which gave license to the 11 companies to operate internal and external services. So this is important to remember as a GK also, that in 1946 India basically started with its air transport aviation boards, air transport licensing board, which gave license to the 11 companies to transport people or to travel, to make any sort of an internal and external transportation with the help of air. Right now. Now, Indian aviation industry is the second largest in the world. At the current, Indian industrial aviation industry is what, second largest in the world. So it was the board of license was set up in 1946. 11 companies were given license
right, for aviations. And today Indian aviations is second largest in the world, world. Right? We virtually started with aviations in 1946, and today you can see that we have made a great progress. Now, what we can say is this, that the Indian infrastructure on the side of aviations had developed a lot after 1946. Before 1946, we did not have any virtual or real aviation system, or network. But now today, at the current period, after a year of along 70 plus years or around 70, 80 years, we have a great aviation company, right? So this is a great support for the Indian economy, because this also, because Indian aviations or any aviations help any country a great deal as far as the infrastructure, or as far as the development of a nation is concerned, with the help of infrastructure. So we are going to do read the advantages of air transport. So what do you think, what could be the advantages of transport? So the transport advantages could be like, it has a very high speed. The first one is very high speed. So a very high speed transport always help you to travel very fast. You can travel to any place in within hours, and it saves your time also. Thus it saves the time and cannot be matched by surface transport over long distance. So जब हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो लैंड ट्रांसपोर्ट से हम इतना फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते जितना कि हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रैवल कर सकते हैं. तो एक पहली एडवांटेज क्या हो जाएगी इसकी, हाई स्पीड. फर्स्ट एडवांटेज, इफ यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, ठीक है, या मेरिट्स की बात करें, अच्छी बातों की बात करें, फर्स्ट इज गोइंग टू बी हाई स्पीड. We got a high speed. You can travel to any place within few minutes. Now minimum cost of construction. Now minimum cost of construction से क्या मतलब है? Second is going to be minimum cost of construction. Now minimum cost of construction mean that we don't need any road tracks for these. So it's very easy to construct the path or the way through which you're going to travel. That means, unlike road and railways transport, there is no need to spend more money on the construction of road or tracks. Only as we only need to construct airports, we need to construct only airports or runways, and nothing more than that, because when the aeroplane moves in the air, it don't need any particular track or roads. There is a particular, the navigation is there, you need to follow that only. There is a particular map, you have to follow that only. So as far as the road and track is concerned, we don't need, the aviations do not need any road or track. So it is cheapest mode of transportation as far as initiating is concerned. Yeah, aeroplane could be expensive, or the Airbus could be expensive, or the airport could be expensive constructing that, but no roadways or tracks are required, and their maintenance cost is also saved. So as far as disadvantages are concerned, so disadvantage could be like high investment is there. Now what is high investment? High investment से क्या मतलब है? High investment से मतलब है कि अगर आपको एक एयरपोर्ट स्टार्ट करना है, आप एक एविएशन कंपनी का स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट चाहिए, और एयरपोर्ट बनाने का मतलब करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, ठीक है. एंड एयरपोर्ट की ही बात नहीं, फिर आपको एयर बसेस भी चाहिए, आपको एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, एरोप्लेन चाहिए, बहुत सारी मशीनरीज चाहिए. इन सब में भी आपको लगा लो, सब मिला करके अरबों रुपए का खर्चा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है. तो एक डिसएडवांटेज वो है इसकी, वो यही है कि आपको इसकी स्टार्टिंग करने में बहुत पैसा चाहिए. इस तरह की अगर आपको एविएशन कंपनी स्टार्ट करनी है, तो लीड लॉट ऑफ मनी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स. क्रिएशन ऑफ एविएशन फैसिलिटी रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट. Only the government is capable of increasing the number of planes and airports in the country. The private sector has its own limitations in this regard. तो what they are saying कि भाई इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, एयरपोर्ट के लिए, एयरप्लेन्स के लिए, फिर जो बाकी की चीज़ें होती है, फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर वाले इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, नंबर ऑफ एविएशन कंपनीज को बढ़ा सकती है, या
आपके नंबर ऑफ एरोप्लेन्स को बढ़ाया जा सकता है। ये एक क्या है, ये एक खराबी है, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज दैट आई मेड यू मार्क वाज स्टाफ्स नॉन कोऑपरेशन। इंडियन एविएशन फैसिलिटीज रेगुलरली फेस problems due to non-cooperation of staff such as strike by pilots etc. सो दूसरी जो डिसएडवांटेज है जो वो है कि जो लोग यहाँ काम करते हैं, मतलब जो स्टाफ है, ठीक है, दे डू नॉट कोऑपरेट। स्टाफ्स नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मतलब वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो उनका अक्सर क्या रहता है, अपने स्टाफ जो स्टाफ होता है, एरोप्लेन का जो स्टाफ होता है या एविएशन का जो स्टाफ होता है, जैसे कि एयर हॉस्टेस हुई, पायलट्स हुए या बाकी के लोग हुए, दे कीप ऑन दे हैव अ दे गॉट कीपिंग देयर इज सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी और द एविएशन सेक्टर एंड द मैनेजमेंट एंड द पीपल दोज हु आर वर्किंग देयर। कभी कभी पायलट्स वहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं, कभी एयर हॉस्टेस वहाँ पे स्ट्राइक कर देती है। तो अब जो स्ट्राइक वगैरह है, स्ट्राइक मतलब हड़ताल वगैरह कर देना, जैसे देट वी डोंट वांट टू वर्क, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, या तो आप सैलरी बढ़ाओ या तो आप फ्लाइट्स के को कम करो कि हम इतने ज़्यादा फ्लाइट्स में एरोप्लेन नहीं उड़ाएंगे। देयर आर मेनी थिंग्स। सो नॉन कॉपरेशन ऑफ staff is there which creates a problem. So I told you earlier also that we are going to do only two advantages and do two disadvantages. Okay, not much of it we are going to do. Pipeline transport, now we'll start with there is one more there is a last disadvantage written in your book in here, that risk of hijacking risk is there. That means risk due to crimes. So many times what happens that the you must have seen in the movies also that कि aeroplane को terrorist ने hijack कर लिया। तो crimes की जब बात करेंगे, बहुत सारे crimes भी aviation sector में होते रहते हैं। कई बार फ्लाइट उड़ती है तो उनको आतंकवादी वगैरह क्या कर लेते हैं, एयरप्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी मूवीज़ में भी, और एक्चुअल लाइफ में भी इट हैज़ हैपेंड मैनी टाइम्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। Now we're going to start with the next one, that is pipeline transport। ठीक है, अभी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट डिस्कस विद यू, या आई जस्ट टेल यू दैट कि ये क्या है जो हमने पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सारी उस तरह की चीज़ें होती हैं जो देश को, किसी देश को चलाने में मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उसको प्रोग्रेस देने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें से एक हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ, वाटर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको क्या करती है, किसी भी देश को रन करने में हेल्प करती है। रोडवेज, कम्युनिकेशंस, तो एविएशन भी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एविएशन इज़ व्हाट, जितना भी हम हवाई सफ़र तय करते हैं, जितना भी हवाई मार्ग हमारा है, या हवाई चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कि एरोप्लेन भी या हेलीकॉप्टर्स हुए, इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी किसी भी देश के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। तो हमने ये पढ़ा, और साथ में ये भी पढ़ा कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। द अनदर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव हियर इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में क्या है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि पाइप, पता चला पाइप, इसमें पाइप्स का यूज़ किया जाएगा, और पाइप से हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। ठीक है, अब पाइप से यूजुअली कौन सी चीज़ें जाती है, जो लिक्विड होती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हो सकता है, डीजल हो सकता है, या कोई गैस वाले फॉर्म में चीज़ है, एलपीजी हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये हम क्या करते हैं, पाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स रीड इट, क्या होता है इसमें। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, दे से दैट पाइपलाइन फॉर्म अ यूनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन अपने आप में ही एक यूनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट है। दे कैन मूव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, मेनली फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड, जितने भी लिक्विड चीज़ें वो इजिली कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। हम कम से कम कॉस्ट में लंबे से लंबे डिस्टेंस हम पाइप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सामान भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, वाटर हुआ, बाकी की चीज़ें हुई, तो इनको पाइप से भेजा जाता है। द ऑपरेशन आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली, डिपेंडेबल एंड कंटिन्यूस। इसमें जो भी काम होगा वो क्या है, एनवायरमेंट फ्री है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान कैसे नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें पाइप से कर रहे हो, और वो जो पाइप्स होंगे वो क्या होंगे, या तो ज़मीन के नीचे बिछे हुए होंगे, अगर ज़मीन के ऊपर भी बिछे हुए हैं तो नो इश्यूज़, क्योंकि सारा सामान तो पाइप के अंदर जा रहा है, तो एनवायरमेंट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। और पाइप के अंदर है तो किसी भी तरह की बारिश का, धूप का, उसपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, आपका एनवायरमेंट फ्री कंटिन्यूस भी रहेगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, और आपका लगातार आपका सामान जाता
रहेगा। द पाइपलाइन कैन बी लेड ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ टेरेन विदाउट मच डिफिकल्टी। ठीक है, तो टेरेन मतलब किस तरह की जगह है, क्या पहाड़ी जगह है या डेजर्ट वाली जगह है या बर्फीली जगह है, तो इसे हम टेरेन कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेरेन्स में इजिली पाइपलाइंस बिछाई जा सकती हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। राइट, सो देयर आर फ्यू थिंग्स मोर आर गिवन, दैट इज से कि अगर हम नॉर्मल सरफेस से कंपेयर करें तो क्या क्या फायदे हैं इसके। They do not require the return of empties to the starting point and as such are ideal for unidirectional traffic। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक तरफा, आपका जो पाइप है ना उनकी उनसे सिर्फ एक तरफ ही आप सामान भेज सकते हो और आपको किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़ता कि वहाँ पे सामान भेजना खत्म हो तो हम वहाँ से फिर रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें यूनिडायरेक्शनल सामान जाता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है एक तरफ से सामान जाएगा ही जाएगा, वहां से वापस नहीं आएगा। जैसे कि सपोज ये पाइप है अगर, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ओनली वन साइडेड, ओनली वन साइडेड। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी सामान जा रहा है, सपोज यहाँ पे पेट्रोल जा रहा है, तो ये सिर्फ जाएगा ही जाएगा, वहां से रिवर्स होके आएगा नहीं। रिवर्स के लिए क्या होगा, दूसरा आपका पाइप होगा, going to have another pipe for reverse। सो जाने के लिए ये रास्ता हो जाएगा और आने के लिए ये रास्ता हो जाएगा। तो इस चीज को यूनिडायरेक्शन कहते हैं, जब एक तरफ के लिए एक ही पाइप होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका किसी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं है या ट्रैफिक नहीं है कि हाँ भाई ये सामान खत्म हो तो हम वहां से भेजें। इट्स नॉट लाइक दैट, ऑल द पाइप्स आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर इनसेंसिटिव टू सरफेस कंडीशन सच एज स्टॉर्म क्लाइमेट कंडीशंस। अब जो बाहर जो भी कुछ हो रहा है, चाहे सनी सनी है, चाहे बारिश हो रही है, इन सब चीज़ों से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तो पाइप से इनका सामान जो है वो तो जाता ही रहेगा। सो चाहे बर्फ भी पड़ जाए तो कोई फर्क इन चीज़ों से यहाँ नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स कि आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है विदाउट डिस्टर्बेंसेस होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो ना, इनको पूरा, क्योंकि पाइपलाइंस वंस द पाइपलाइंस आर लेड, एक बार पाइपलाइंस को बिछा दिया गया है, ले कर दिया गया है, तो फिर ज़्यादा कोई और खर्चे नहीं होते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है कि टूट फूट तो नहीं हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो क्या करती है, इसको लो कॉस्ट में रखती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा खर्चे की बात नहीं आएगी, क्योंकि एक बार आपने पाइप बिछा दिया तो बाद में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एज सच आती नहीं है। ठीक है, देन दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। दूसरी जो बात है ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब कि ये कुछ भी नुकसान हमारे एनवायरमेंट को नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ना कुछ धुआं होगा, ना कोई गंदगी होगी, ना कुछ होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, फ्री रहेगा इन सब गंदगियों से। ठीक है, सो दे आर टेलिंग कि कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने, जैसे कि दिया हजीरा वाया बीजापुर एंड जगदीशपुर कैरीज नेचुरल गैस। तो हजीरापुर से बीजापुर से जगदीशपुर होते हुए BHJ आपका क्या जाता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब जो आपका गैस निकलती है नेचर से, दैट इज LPG वगैरह है। ये सब चीज़ें जो गैस से निकलती हैं, ये सब चीज़ें हम किससे बेचते हैं, हम बेचते हैं इसको। एक एग्जांपल दिया है उन्होंने यहाँ पे, BHJ दैट इज हजीरा वाया बीजापुर जगदीशपुर। ठीक है, हजीरा वाया बीजापुर, वाया बीजापुर। ठीक है, वाया बीजापुर होते हुए टू जगदीशपुर, टू जगदीशपुर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल आपका BHJ का एग्जाम्पल है। ठीक है, BH के लिया है के BHJ का एग्जाम्पल है। सो हजीरापुर से बीजापुर होते हुए और जगदीशपुर होते हुए एक पाइपलाइन है जिससे क्या जाता है, नेचुरल गैस जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू दिस प्लेस। ठीक है, तो हमने पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट तक पढ़ लिया है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं। कि आपकी टेलीफोन हो सकती है, पोस्टल सर्विसेज हो सकती है, फैक्स हो सकता है, कंप्यूटर, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सब चीज़ों से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प अस in exchange of information is known as what, communication. ठीक है, is known as what, communication. So in the next video we are going to discuss about what
we're going to discuss about communication. So in the next video, we're going to start with communication. That is, we will be starting in the next video. Till then, take care of yourself and keep completing your work. Thank you, children.